Hey my dear lovely students, a very good morning to all of you. Once again I welcome you all in today's video session. In the today's class we will be looking with some important questions on simple interest. I hope you all are very well at home. The questions which I am going to teach you today is very important from your examination point of view. So without wasting any more time, let's start our today's video, that is questions on simple interest. Questions on simple interest. The first question which I am taking today is a word problem. The question is very interesting. Whenever you get question, first of all try to write all the given contents, like what is the principal, what is the rate, what is the time, etc. The first question which I am going to take today is Santa borrowed rupees 6,000 from the State Bank of India for 3 year 8 month at 12% per annum. What amount will clear off her debt? The question is Santa borrowed rupees 6,000 from State Bank of India. So what is principal? Rupees 6,000 from the State Bank of India for 3 year 8 month. Time is equal to 3 years 8 month at 12% per annum. So what is the rate? The rate is 12% per annum. What amount will clear off her debt? The question is what amount will clear off her debt? क्या अमाउंट उसको देना पड़ेगा कि उसका जो भी वो पैसा लिए है वो खत्म हो जाए? Principal, time and rate. So to find out the amount, we will have to first calculate simple interest. What is simple interest? Simple interest is equal to P into R into T by 100. What is principal? Principal is 6,000. What is rate? Rate is 12% per annum. What is time? Time is 3 year 8 month. In the last class I have taught you how to convert time into year. Okay, so 12 3 ja 36 month and plus 8 month. 36 plus 8 will be equal to 44 month, and to convert month into year we simply divide it with 12. 44 by 12 years. I hope it is clear. तो टाइम की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 44 by 12 और डिवाइडेड by 100. 2 0 से 2 0 कैंसल. 12 5 जा 60. 12 5 जा 60 into 44. So 6 4 जा 24. 24 का 4 कैरी कितना? 2. 6 4 जा 24. 24 plus 2 26. 2640. This is the simple interest on her principal. So we have to find out the amount. What is the formula for amount? Amount is equal to principal plus SI. What is principal? Principal is 6,000. What is SI? SI is 2640. So 6,000 plus 2,000 will be 8640. This is the amount which is required to pay to clear off the debt. So this is the required amount which is to be given by Shanta to clear off her debt. I hope it is clear to everyone. Okay, let's move on to next question. The next question is the simple interest on a certain sum for 3 years. Let me write the question for you. The simple interest on a certain sum for 3 years at 10% per annum is rupees 829. Is rupees 829.50. Find the sum.
दिस इज द क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, कोई भी एक सम है उस पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 829.50, कितने साल में, 3 साल में, और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। सो यू हैव टू फाइंड द सम, सम का मतलब प्रिंसिपल। तो लिख लेते हैं जो कुछ चीज दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 829.50, टाइम इक्वल टू 3 years, रेट इक्वल टू 10% पर एनम। ओके, तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल, तो हम लोग को मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, और प्रिंसिपल का भी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आप प्रिंसिपल के फॉर्मूला से निकालें तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला को याद होना चाहिए 100 इंटू SI डिवाइडेड बाई R इंटू D। तो 100 इंटू SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 829.50 डिवाइडेड बाई रेट, रेट कितना है 10% पर एनम, टाइम कितना है 3, डेसिमल चला जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100, तो 100 कैंसल, और 1 0 से 1 0 कैंसल, तो बचा कितना 8295 डिवाइडेड बाई 3 से काट सकते हैं, 3 2 जा 6, बचा कितना 222, 3 7 जा 21, बचा 1 और 9 19, 3 6 जा 18, बचा 1 और 3 5 जा 50। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल, principal is ₹2765, hence principal is ₹2765। I hope it is clear to everyone। किसी भी बच्चे को अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन वॉच ऑल ऑफ माई प्रीवियस वीडियोज, जितने भी प्रीवियस वीडियोज हैं आपके कोर्स से रिलेटेड वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। सो इफ यू लाइक द कंटेंट्स डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड पुट डाउन योर कमेंट्स ऑन एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव, ओके। एंड काइंडली क्लिक ऑन द आई बटन that is on the right side, top right side of the screen to watch the previous video on questions on simple interest, okay। So let's move on to the third question of our today's session। The third question which I am taking is a very simple question. Question is a sum when reckoned at 7.1/2% per annum amounts to ₹3920 in 3 years. Find the sum. This is the question. A sum when reckoned at 7.1/2% per annum amounts to ₹3920 in 3 years. Find the sum. कोई भी सम है अगर हम लोग उसको 7.2% पर एनम के इंटरेस्ट के साथ देते हैं तो वो कितना अमाउंट करता है 3920 इन 3 years, 3 साल में। फाइंड द सम, अगेन यू हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल। सो व्हाट इज गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन टर्म्स। 7.1/2% तो रेट इक्वल टू 7 2 जा 14 + 1 15/2, 7.1/2% पर एनम तो 7 2 जा 14 + 1 15/2% पर एनम। रेट हम लोग निकाल लिए। अमाउंट टू 3920, तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 3920 रुपीज, ओके। टाइम कितना है 3 years। अब फाइंड द प्रिंसिपल, हमको क्या निकालना है प्रिंसिपल। तो हमारे पास रेट है, अमाउंट है और क्या है टाइम है। वी डोंट हैव द
principal. So let the principal equal to rupees x. प्रिंसिपल को क्या मान लिया हम लोग, रुपीज x. तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. और एक और चीज, अमाउंट इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3920. ओके, तो अमाउंट इक्वल टू 3920. तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एस आई. प्रिंसिपल प्लस एस आई का वैल्यू है 3920. प्रिंसिपल को हमने क्या माना है, एक्स. एक्स प्लस एस आई. एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल. प्रिंसिपल तो है नहीं, तो प्रिंसिपल जगह पे एक्स इंटू रेट. व्हाट इज रेट, रेट इज 15/2 इंटू टाइम. व्हाट इज टाइम, टाइम इज 3 डिवाइडेड बाई 100. 3920. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई. प्रिंसिपल को हम लोग एक्स माने हैं तो एक्स लिख दिए. सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो पी प्रिंसिपल यानी कि एक्स, रेट यानी कि 15/2 और टाइम यानी कि 3 और डिवाइडेड बाई 100. किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. सो एक्स प्लस सॉल्व कर सकते हैं. ओके, नीचे काट देते हैं ताकि आपको साफ साफ नजर आए. 15 3 जा 45x और 2 इंटू 100 200. ठीक है, हम ये चीज कर रहे थे ताकि आपको साफ से दिखाई दे. 5 9 जा 45 एंड 5 4 जा 20. 40 बार में. अब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा ना, अब तो बहुत क्लियर है. तो अब लिख सकते हैं x प्लस 9 इंटू एक्स 9x डिवाइडेड बाई 40 इक्वल टू 3920. अब सारे बच्चे सॉल्व कर सकते हैं. s के नीचे कुछ नहीं का मतलब 1 1 और 40 कैल्सियम 40. 1 से 40 40 बार में 40 इंटू एक्स 40x प्लस 41 जा 40 9x इज इक्वल टू 3920. 40 प्लस 9 49x इज इक्वल टू 3920. 40 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू 40. तो x इज इक्वल टू 3920 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 49. 49 से कितनी बार में कट जाएगा, 9 8 जा 72. शायद 8 टाइम्स में. 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7 8 4 जा 32 एंड 7 39. तो 49 से कट जाएगा 8 बार में और 0. तो x इज इक्वल टू 8 4 जा 32 और 00. x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3200. और हमने x को क्या माना था, प्रिंसिपल. और हमको निकालना क्या था, फाइंड द सम. सम का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल. समझ में आ गया सबको. हेंस x यानी कि प्रिंसिपल, हेंस प्रिंसिपल इज ₹3200. ठीक है, आप एकदम क्लियरली देख सकते हैं. ओके, स्लाइड करके ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, लेट्स टेक फ्यू मोर क्वेश्चंस. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन. अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत सारे बच्चे, जो भी बच्चे देखते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे तो देखते नहीं. आई डोंट नो व्हाई. शायद वो देखना नहीं चाहते या उनको मोबाइल फोन पसंद नहीं है, वो वीडियो देखना पसंद नहीं करते. हो सकता है कुछ भी रीजन हो. लेकिन जो भी बच्चे देखते हैं, काइंडली कमेंट मी डाउन दैट यस सर आई हैव अंडरस्टूड वेल, या आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट. कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, है ना, आप उस चीज को कमेंट कर सकते हैं. एंड डू रिमेम्बर to watch all my previous videos by subscribing my channel, and you all know the name of my channel very well. So let's take another question. The next question which we are taking is, a sum of money invested at a sum of money invested at 8% per annum amounts to rupees 12122
in 2 years, what will be the amount? What will it amount? Amount to in 2 years 8 month. 2 years 8 month at 9% per annum. दिस इज द क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन समझा लेते हैं. अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम. किसी भी सम ऑफ मनी को यानी कि कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग खर्च करते हैं 8% पर एनम से, तो वही हमको कितना अमाउंट देता है? 12122. यानी कि किसी को उधार दिया गया पैसा 8% पर एनम के रेट से, तो हमको कितना पैसा मिलता है? 12122 इन 2 ईयर, 2 साल में मिलता है. तो व्हाट विल इट अमाउंट टू इन 2 ईयर 8 मंथ? व्हाट विल इट का मतलब क्या है? प्रिंसिपल से. तो उसी प्रिंसिपल को 2 साल 8 महीना के लिए अगर दे दें 9% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, तो हमको कितना अमाउंट मिलेगा? तो सबसे पहला काम क्या निकालना है हमको? इट का मतलब प्रिंसिपल. तो यहां पर तो हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल. तो पहले वाले के लिए हमको प्रिंसिपल के लिए क्या क्या कंडीशन दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है 8% पर एनम, और अमाउंट दिया हुआ है 12122 दिया हुआ है इन 2 ईयर्स, और टाइम दिया हुआ है 2 ईयर्स. तो हमको नहीं लगता है कि हमको आपको ये क्वेश्चन बताने की जरूरत है, क्योंकि आप ये बना सकते हैं. अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि प्रिंसिपल तो है नहीं, तो लेट प्रिंसिपल इक्वल टू ₹X या ₹P, आपको जो सही लगे आप वो मान लीजिए. हमने X मान लिया. अमाउंट कितना है? 12122. अमाउंट इक्वल टू 12122. अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस SI. फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा बच्चे, तो बहुत प्रॉब्लम होगा आपको सॉल्व करने के लिए. अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI. प्रिंसिपल कितना माने हैं? X प्लस SI का फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100. प्रिंसिपल कितना? X. रेट कितना? 8. टाइम कितना? 2 डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट क्लोज्ड, और इज इक्वल टू 12122. तो X प्लस 2 से कट जाएगा कितनी बार में? 50 बार में, और 2 4 जा 8, और 2 से 25 बार में. तो 4 इंटू X, 4X बाई 25 इज इक्वल टू 12122. X के नीचे कुछ नहीं, मतलब कितना? 1. तो 1 और 25 का एलसीएम 25. 1 से 25 टाइम्स में 25 इंटू X, 25X प्लस 25 बचा 25, 4X इज इक्वल टू 12122. 25 प्लस 4 29X बाई 25 इज इक्वल टू 12122. तो 29X इज इक्वल टू 12122 इंटू 25. तो X का वैल्यू क्या आ जाएगा? X इज इक्वल टू 12122 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 29. 29 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 29 से एक बार में तो हम लोग नहीं काट सकते बच्चे ना, इसको बारी बारी से काटते हैं. तो अगर हम लोग इसको 6 से भी नहीं कर सकते, 4 से करके देखें. 4 9 जा 36 का 6 कैरी कितना? 3, और 4 2 जा 8 और 3 11, 116. तो 29 से कट जाएगा 4 टाइम्स में, कितना आ जाएगा? 116. तो 121 में से 116 गया, कितना बच गया? 5 बच गया ना. अब बचा कितना? 2 और 2 22. तो क्या 29 से कट सकता है? 9 के टेबल में लास्ट में 2 कैसे आएगा? 9 8 जा 72. तो 29 8 जा 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7 8 2 जा 16 और 7 16 एंड 7 23 2 3 2.
29 एट जा 232, उससे पहले एक बार में कट जाएगा ना। 29 4 जा 116, बचा 5 151 52, 29 1 जा 29, रिमाइंडर कितना बचेगा 52 माइनस 29 23 एंड 232, 232 कितनी बार में आएगा 8 बार में, 418 टाइम्स में कट जाएगा। सो x इज इक्वल टू 418 मल्टीप्लाइड बाई 25, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, x 425 विल बी इक्वल टू 25 8 जा 150 का 0 कैरी 5 ना, 25 1 25, 25 प्लस 5 30 10450 इतना आएगा 418 इंटू 25, x is equal to 10450, hence principal is ₹10450। अब ये तो प्रिंसिपल निकाले हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल इट अमाउंट टू, उससे कितना अमाउंट मिलेगा, 2 in 2 year 8 month at 9% पर एनम। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकाल लिए, प्रिंसिपल कितना है 10450, रेट कितना है 9% पर एनम के हिसाब से बोल रहा है, और टाइम कितना है 2 year 8 month, 2 year 8 month। अगर इसको कन्वर्ट करें टाइम को तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू 12 2 जा 24, 24 प्लस 8 32 मंथ, और अगर ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 32/12 ईयर। प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो क्या निकालना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T/100। प्रिंसिपल 10450, रेट के जगह पर 9, टाइम की जगह पर 32/12 और डिवाइडेड बाई 100, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 से कट जाएगा 8 बार में, 0 से 0 कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 से काट सकते हैं, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45, तो क्या बचा 209 इंटू 4 3 जा 12, 12 9 जा 108, 108 का 8 कैरी कितना 10, 12 इंटू 0 0, 0 प्लस 10 10 का 0 कैरी कितना 1, 12 2 जा 24 प्लस 1 25, 2508, दिस विल बी सिंपल इंटरेस्ट। तो बोल रहा है कि व्हाट विल इट अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, प्रिंसिपल के जगह पर कितना 10450 प्लस SI कितना 2508, ऐड कर देंगे 0 प्लस 8 8, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 9 एंड 10 प्लस 2 12, 12958 रुपीज। दिस इज द अमाउंट। आपको समझ में आ गया क्वेश्चन, एक बार फिर से समझा देते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन था कि सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम अमाउंट्स टू ₹12122 इन 2 years, व्हाट विल इट अमाउंट, वही प्रिंसिपल क्या अमाउंट करेगा अगर हम उसको 2 ईयर के बजाय 2 year 8 month के लिए दे देते और 8% के बजाय 9% दे देते। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा, रेट है, अमाउंट है, टाइम है, प्रिंसिपल को x मान लिए तो अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग क्या निकालिए x का वैल्यू, और x से क्या था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल आ गया 10450। जब प्रिंसिपल आ गया 10450, रेट आ गया 9% पर एनम, टाइम आ गया, और टाइम को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे ईयर में, तो फिर सॉल्व कर देंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 2508, और फिर क्या होता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, तो 12958। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। किसी भी बच्चे को और कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सएप। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Hope to see you in my next video. Stay at home and stay safe. Thank you all.